Good morning, students of class 9th. Today I am going to teach you English literature lesson 3rd, Ishwaran the storyteller. Okay. uh, this lesson has been written by R.K. Lakshman. Okay. The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. He was junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams, and so on. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office, from a coal mining area to railway bridge construction site, from there after a few months to chemical plants which was coming up somewhere. Okay, he was bachelor, his needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. But one asset he had was his cook, Ishwaran. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. He cooked for Mahendra's, washed his clothes, and chatted away with his master at night. He could weave out endless stories and dates on varied subjects. Okay, स्टूडेंट्स देखिए इसमें क्या होता है कि एक महेंद्र होते हैं. ठीक है, महेंद्र की नौकरी देखिए कैसे लगती है. महेंद्र एक कंपनी में सुपरवाइज़र होते हैं. ओके, और वो जो है कंपनी के जो सुपरवाइज़रों को बिल्डिंग का काम दिया जाता है. स्थल बिल्डिंग का जो स्थान है, फैक्ट्री, पुल, बांध आदि किराए पर कार्य करने के लिए देती थी. ठीक है, ये काम था वहाँ पे. महेंद्र की नौकरी कार्यस्थल के क्रियाकलापों पर नज़र रखने की थी. उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था. ठीक है, वह कुंवारा था, बैचलर था. वह अपने आप को सारे हालातों में ढाल लेता था. ठीक है, उसके बाद उसके साथ में एक जो है कुक था उनका, उसका नाम था ईश्वरन. वो उसके लिए खाना बनाता था, कपड़े धोता था, सारे काम उसके करता था. ठीक है. ओके, ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour, arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. Okay, महेंद्र को आश्चर्यचकित करने वाला रसोइया ईश्वरन नाम का रसोइया रखा था. ठीक है, यानी महेंद्र को जो रसोइया था बहुत ही अद्भुत था, आश्चर्यचकित कर देता था. ठीक है, इसलिए उसका नाम ईश्वरन रखा गया था. ईश्वरन नाम था उसका. ईश्वर के अंदर आश्चर्यचकित करने वाली योग्यता थी. वह सब्जियों को पकाने की वस्तुओं को न जाने कहाँ से उपलब्ध कर लेता था. वह एक या अधिक घंटे में जादुई रूप में ताज़ा सब्जियां के साथ स्वादिष्ट व्यंजन प्रस्तुत कर देता था. महेंद्र कुछ खाने के साथ सुबह सुबह ही काम पर चला जाता था. ओके, अब देखिए, महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क after breakfast, carrying some prepared food with him. Meanwhile, Ishwaran would tidy
up the shade, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water up his head, muttering a prayer all the while. It would be lunch time by then. After eating, he would read for a while before dozing off. The book was usually some popular Tamil thriller running 200 of pages. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold ईश्वरन in thrall. ओके यानी ईश्वरन का कार्य वहाँ पे था कि महेंद्र के चले जाने के पश्चात ईश्वरन छप्पर को संवारता था, वह कपड़े धोता था, प्रार्थना करते हुए वह स्नान करता था। दोपहर के खाने के पश्चात सुस्ताने के लिए वह तमिल भाषा में एक सनसनीखेज पुस्तक पढ़ता था। उसका कहानी कहने का अद्भुत तरीका था। उसकी कहानियों में सनसनीखेज पुस्तक का प्रभाव होता था, यानी उसकी कहानियों में कल्पना शक्ति ज़्यादा होती थी। ओके, अब देखिए, his own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the coconut. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say that eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture. The road was deserted and I was alone. Suddenly I spotted something and that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was fallen tree with its dry branches spread out. Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to ईश्वरन tales uncritically. ओके, यानी जो ईश्वरन कहानी कहते थे, उनका कहने का तरीका था, ईश्वरन का छोटी सी घटना होती थी उसका वर्णन करते हुए बहुत ही अद्भुत तरीके से कहानी कहते थे। ठीक है, वह रहस्यमय कहानी को कहता था। वह इसमें अद्भुत अंत यानी सस्पेंस भरी जो अद्भुत उसका अंत होता था, यह इसलिए कि वह बहुत कल्पनाशील था। महेंद्र उसे बिना किसी आलोचना के सुनता था। प्लीज़ टर्न ओवर। Okay, is that clear? The place I come from is famous for timber. Okay, Ishwaran would begin. There is a richly wooded forest all around. The logs are halted on the lorries by the elephant. They are huge, well-fed beasts. When they turn wild, even the most experienced Mahavat is not able to control them. After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate incident involving an elephant. ओके, यानी ईश्वरन अब जो है ईश्वरन एक हाथी की कहानी कहता है। एक दिन ईश्वरन ने एक हाथी की कहानी सुनाई। एक दिन एक हाथी इमारती लकड़ी के स्थान से बच निकला। यह इधर उधर घूमता रहा। उसने बेलें उखाड़ दी और टहनियाँ तोड़ दी। ईश्वरन कहानी से इतना प्रभावित हो जाता है कि वह यहाँ वहाँ उछलने लगता है। ओके, वन डे टस्कर escaped from the timber yard and began to roam about, stemming on the bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad. Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. यानी वो जो हाथी था वो बिल्कुल वैसे बिहेव कर रहा था, एक मैड हाथी की तरह, जैसे हाथी पागल हो जाता है उस तरह से
वो महावत के कंट्रोल में भी नहीं आ रहा था। हाथी जो है व्यक्तियों में दहशत उत्पन्न कर देता है। हाथी कस्बे में पहुंच गया और उसने क्या क्या किया देखिए। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट ऑफ द आवर टाउन ब्रेकिंग द फेंस डाउन लाइक मैच स्टिक्स ही वुड कंटिन्यू। यानी एलिफेंट जो है टाउन में पहुंच गया, वहाँ की चारदीवारी को तोड़ दिया और इस तरह से तोड़ दिया जैसे माचिस की तीलियाँ को तोड़ देते हैं, ठीक है। ही वुड कंटिन्यू, वो ऐसा करता रहा। इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स। और उसने जो है सारी दुकानें, फल, कपड़े वपड़े सब कीचड़ में मिला दिए। पीपल रेन हेल्टर स्कैटर इन पैनिक। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग breaking through the brick wall. All the boys ran into the classrooms and pulling into the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking the flattening the drum kept for water and uprooting the shrubs. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace and a school building. From there, they helplessly watched the depredations of the elephants. There was not a soul below on the ground. The streets were empty, as if the inhabitant of the entire town had suddenly disappeared. ओके यानी हाथी ने इतनी दहशत उत्पन्न कर दी कि वो कस्बे में पहुंच गया, फलों की सारी दुकानों को तोड़ दिया, व्यक्तियों इधर उधर दौड़ने लगे। विद्यार्थियों ने अपने आप को क्लासरूम में छुपा लिया, गलियां खाली हो गई। और उसने क्या किया, जो खेल के मैदान में जाके सब कुछ तोड़ ताड़ दिया, ठीक है। जो वॉलीबॉल का नेट वगैरह लगा हुआ था वो सब तोड़ दिया। और टीचर्स भी परेशान होकर सब इधर उधर टेरेस पर चढ़ गए। ओके, अब क्या हुआ कि अब देखिए, उस समय ईश्वरन छोटी कक्षा का विद्यार्थी था। उसने नहीं जाना कि उसे क्या हो गया था। उसने एक छड़ी ली और हाथी का पीछा करने लगा, ठीक है। अब देखिए, आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट द टाइम एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ one of the teachers and ran down the stairs and into the open. The elephant grunted and meaningly swung a branch of a tree which it held in its trunk. It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. It looked frightening, but I moved slowly toward it, stick in his hand. People were watching the scene, hypnotized from nearby housetop. The elephant looked at me red-eyed, ready to rush towards me. It lifted its trunk and trumpeted loudly. At that moment, I moved forward and mustering all my force. Next, its third tunnel on the quick. The beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to foot and collapsed. ओके, यानी अंत में क्या होता है, ईश्वर ने जो कहानी सुनाई थी, अंत में हाथी ने बहुत ज़ोर से चिंघाड़ा, ठीक है। बहुत ज़ोर से चिंघाड़ा जो है, टम्प्ट किया हाथी ने जो है, और अपने पैर पटककर व्यक्तियों पर जादू जैसा प्रभाव हो गया। तब ईश्वर ने हाथी के अंगूठे के नाखून पर वार किया। यह सिर से पैर तक कांपा और नीचे गिर गया। जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया। 2 दिन पश्चात हाथी को महावत द्वारा ले जाया गया। ईश्वरन से पूछा गया कि उसने ऐसा कैसे किया। उसने बताया कि उसने इसे जापानी कला, कराटे या जूजित्सु आदि द्वारा किया। ओके, अब देखिए, अब इसमें क्या होता है। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग, आई विल बी बैक आफ्टर lighting the gas and warming up the dinner. Mahendra, who had been listening with rapt attention, would be left hanging, and when they returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story
Right away, Mahendra would have remind him that the conclusion was pending. Well, a veterinary doctor was summoned to receive the animal. Ishwaran would shrunk closely. 2 days later, it was led away by its महावत to the jungle. अब देखिए क्या हुआ कि कहानी को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया और वो जो है महेंद्रन जो है अपने लिए क्या करने लगा, वो डिनर के बनाने लगा। और उसने क्या किया कि एक पशुओं के डॉक्टर को बुलाया और उसको दिखाया उसे। फिर 2 दिन बाद उसका जो महावत था हाथी का, उसे जंगल ले गया। ठीक है। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन? हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? उन्होंने कहा कि अच्छा अब तुम जानवर को मैनेज कर लोगे, है ना। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? तुम इस जानवर को नीचे कैसे लाओगे? ठीक है। इट हैज़ समथिंग टू डू विद ए जापानीज आर्ट। ये एक जापानी कला है। आई थिंक सर कराटे और जूत्सु, इसे कराटे और जूत्सु बोला जाता है। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर। मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा है। इट टेम्पररली पैरालिसिस द नर्वस सिस्टम यू सी। ये जो है एक तरह से पैरालिसिस, जैसे लकवा होता है ना, लकवा मार जाता है, या नर्वस सिस्टम का खेल है। तुम देखो, नॉट ए डे पास्ट विदाउट ईश्वरन recounting some story packed with adventure, horror and suspense. Whether the story was credited or not, Mahendra enjoyed listening to it because of imitable way in which it was told. Ishwaran seemed to more than make up for the absence of TV Mahendra's living quarter. यानी एक दिन भी नहीं गुजरा था, ईश्वरन ने फिर दोबारा से एक कहानी कहने, साहस भरी एक दूसरी कहानी, साहस भरी और डरावनी कहानी जिसमें कि सस्पेंस भी था, वो कहना शुरू कर दिया। वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट, यानी उसने ही सोचा नहीं कि इस स्टोरी जो है क्रेडिबल है या नहीं है। महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट। महेंद्र जो है उसे सुनने में आनंद लेने लगा। इट बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, यानी जिस ढंग से वो कह रहा था वो तरीका उसका अच्छा था। ईश्वरन सीम टू मोर दैट मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर्स, यानी वो कह रहा था कि उसके कमरे में टीवी नहीं था, तो अब जो है वो जो कहानी सुना रहा था तो उसी में आनंद ले रहा था, वही उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसका कहानी कहने का ढंग जो है बहुत अच्छा लग रहा था। वन मॉर्निंग When Mahendra was having breakfast, ईश्वरन asked, एक सुबह महेंद्रन से ईश्वरन ने पूछा कि ब्रेकफास्ट के लिए पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट? क्या मैं तुम्हारे लिए आज रात को कुछ स्पेशल डिनर बना सकता हूँ? आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे। आखिर ये आज बहुत अच्छा दिन है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिशियस टू फीड स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। कह रहा है कि आज मैं जो है आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ का ये रिवाज है ना, कि यहाँ की जो आत्मा है, जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पुरखे हैं, उनकी आत्माएं आती हैं खाना खाने के लिए, तो इसलिए मैं आज बहुत डेलिशियस खाना बनाऊंगा। That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन on his culinary skills. उस रात महेंद्र ने बहुत स्वादिष्ट खाना खाया और ईश्वरन को कॉम्प्लीमेंट दिया कि वो जो है खाना बनाने की कला में पारंगत है, बहुत ही उसमें स्किल्स हैं, मतलब काफ़ी उसमें योग्यता है। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, बट वो समझ गया अनएक्सपेक्टेडली launched into a most garish account involving the supernatural। और वो जो है वो सोचने लगा कि मैंने जो बताया है वो अंधविश्वास, इनमें ये जो है इन्होंने उस अंधविश्वास को मान लिया है। ठीक है, कि जो है यहाँ पे कोई इस तरह से आत्मा आती हैं और खाना खाती हैं। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस ए ब्यूरल ग्राउंड।
सर क्या आप जानते हैं, सर आप जानते हैं कि पूरा एंटायर संपूर्ण जो संपूर्ण एरिया है जिसमें ये फैक्ट्री बनी हुई है, वो जो है पूरा स्थान वी आर ऑक्युपाइंग वाज वंस ए ब्यूरल ग्राउंड। एक समय ये जो है खाली जगह था, यानी एक समय में ये जो कब्रिस्तान था, खाली पड़ा हुआ था। ही स्टार्टेड महेंद्र वाज जैक्ट आउट ऑफ द प्लीजेंट river he had drifted into after the satisfying meal। ओके, अब वो जो है उसको अजीब सा लगने लगा कि खाना इतने अच्छे से खाना खाया, उसके बाद उसको ऐसा सुनने को मिले तो उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। आई न्यू, हाँ मैं जानता था। ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पथ, हाँ मैं जानता था, मुझे पता है, पहले ही दिन मैंने देखा था कि एक आदमी की खोपड़ी रास्ते में पड़ी हुई थी। इवन नाउ, अक्सर नाउ आई वाज क्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल एंड बोन्स, और अक्सर मैं मुझे वहाँ से क्रॉस होता हूँ, निकलता रहता हूँ। अक्सर मुझे इस तरह की हड्डियाँ और ये स्कल जो है पड़ी दिखती रहती हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैरा देखिए। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ गोस्ट्स एट नाइट। I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow, but one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face, like a skeleton holding a fetus in इट्स आर्म्स। ओके, यानी वो बता रहा है कि ईश्वरन की ईश्वरन जो है दूसरी भूत की कहानी बता रहा है कि एक दिन ईश्वरन ने महेंद्र को उस जगह के बारे में कुछ बताया कि वहाँ फैक्ट्री के स्थान पर कब्रिस्तान था और वहाँ पर मानव खोपड़ी आई थी। ये सब सारी चीज़ें बताई, और उसने ये भी बताया कि रात में बहुत सारे भूत देखे जाते हैं, उसे डर नहीं लगता क्योंकि वह बहादुर था। परंतु एक महिला का भयानक भूत उसके सामने आया। उसने ये बताया कि एक जो स्त्री है उसका भयानक भूत यहाँ पर रहता है, और वो बहुत ही भयानक है, बहुत ही भद्दा है। ठीक है, और क्या है उसके साथ में, देखिए उसके बाल उलझे हुए हैं। उसके जो महिला का भूत है, स्त्री का भूत है, बाल उलझे हुए थे, चेहरा सूखा हुआ था, वह कुरूप थी। उसके हाथों में एक भ्रूण, यानी एक मतलब भ्रूण लगा हुआ था। ठीक है, भ्रूण यानी उसका मतलब डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, यानी इन्फेंट से पहले। ओके, अब देखिए, महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शंस एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन, देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट्स और स्पिरिट्स, इट इज़ ऑल ए फिगमेंट of your imagination. Get your digestive system examined and maybe your head as well. You are talking nonsense. देखिए महेंद्र को क्या होने लगा, महेंद्र उसकी बातें सुनकर, भूत के बारे में सुनकर, उस महिला के बारे में सुनकर कांपने लगा। ईश्वरन की बात सुनकर महेंद्र जो है कांपने लगा। उसने ईश्वरन को पागल कहा, कहने लगा तुम पागल हो क्या, है ना, जो इस तरह की बातें कर रहे हो। उसने उसे बताया कि भूत नहीं होते, ये मन की उपज होते हैं, सिर्फ हमारे मन की उपज है, कोई भूत नहीं होते हैं। उसने ईश्वरन को अपनी डॉक्टरी जांच करवाने के लिए कहा। महेंद्र फिर सोने चला गया। ठीक है, ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फ्रॉम द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू स्टिक द कपल ऑफ डेज, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एज टॉकेटिव एज एवर। ठीक है, वो सोने चला गया था, महेंद्र सोने चला गया था, लेकिन और वो भी चला गया था वहाँ से, ईश्वरन भी चला गया था। उसके बाद क्या होता है कि महेंद्र जो है रात में परेशान रहता है। ठीक है, लेकिन ईश्वरन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह 2 दिन बाद ऐसा वैसे रहता है और सुबह आ जाता है, फिर मुस्कुराता हुआ, बात करता हुआ। ठीक है, और फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू द बेड विद ए सर्टेन अनईज।
लेकिन महेंद्र जो है उसकी जो बहादुरी भरी बातें हैं और ये सब सुनकर भी ज़्यादा खुश नहीं होता और वो सोने चला जाता है। एवरी नाइट ही peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity, but he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. ओके उसके बाद वो क्या देखता है कि वो जो है खिड़की से बाहर झांकता है ना, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। वो देखता है कि बाहर देखो कोई अंधेरे में कोई डरावनी कोई वो तो नहीं है, भयानक कोई आकृति तो नहीं है। बट ही कुड ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस, लेकिन वो सिर्फ समुद्र की डार्कनेस को ही देख पाता है। और क्या देखता है, वो तारे, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, द फैक्ट्री माइल्स, लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, यानी फैक्ट्री से मीलों दूर वो तारे टिमटिमा रहे हैं। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या होता है, वो जो है फिर उसकी प्रशंसा करता है। वो जो लैंडस्केप जो बना हुआ है ना, तो उसकी तारीफ़ करता है कि देखो वाइट कितना अच्छा लग रहा है, फुल मून निकला हुआ है, जो पूर्ण चंद्रमा निकला हुआ है। और ईश्वर ने जो कहानी सुनाई थी फीमेल गोस्ट की, वो कैसी थी, अद्भुत थी, ये इसके बारे में सोचने लगता है। और व्हेन द मून वाज फुल,